Dear students, in this video we will cover two important questions of exercise 4.2, that is question number 5 and 6. They might be difficult for you to solve, so I will explain you here in the video. So both questions have been covered here. So let's start with the question number 5. So let's read the problem. In question number 5, what is given here? The altitude means height of a right triangle is 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. यानी जो किसी एक राइट ट्राइंगल की हाइट है वो कितनी कम है, बेस से 7 कम है. दैट मीन्स आई कैन से हाइट इज़ डिपेंडिंग ऑन बेस. बेस के ऊपर डिपेंड कर रही है तो बेस को हम x मानेंगे. तो जिस पर भी डिपेंड करती है दूसरी साइड तो उसको हम x सपोज करते हैं. सो लेट अस सपोज दैट बेस बी x. तो पहले हम एक सिचुएशन जैसी गिवन है उसके हिसाब से राइट ट्राइंगल बना लेते हैं. So according to this question, this is our right triangle ABC. I have supposed base be x. This is right triangle है 90. So let base be x. Further it is given that altitude means height. Height of right triangle is 7 less than base. So it is height and it is 7 less than base. So base x है आपका तो x से वो कितना कम है, 7 कम है. Further, if the hypotenuse is 13, find other two sides. So hypotenuse is how much? 13 and it is in centimeter. You have to find other two sides. आपको ये निकालनी है. So whenever you get questions related to right triangle, so one thing must come to your mind, that is Pythagoras theorem. वो सबसे important होती है right triangle में. तो सबसे पहले हम Pythagoras ही लगाएंगे. So we will see in triangle ABC what is there. H square is equal to P square plus B square in bracket mentioned by PGT, by Pythagoras theorem. So what is h here? Hypotenuse is 13. So I should write 13 square is equal to, perpendicular is x minus 7. So I should put bracket first, x minus 7 whole square, because it is complete perpendicular. तो whole square इसका ज़रूर लगाना compulsory है. And what is base here? Base is x, so it will be x square. I have to solve it simple. So 13 is 169. A minus b whole square, it will be a and b. x minus 7 को हम कह सकते हैं a minus b whole square. So वही आइडेंटिटी हमें यहाँ यूज़ करनी है. a square plus b square minus 2ab. So x square plus 49 minus 2ab. 2 into x into 7. 14x plus x square. I can solve it further. So it will become 2x square minus 14x plus 49 minus 169 equal to 0. I have shifted all material here. So let's see. 2x square minus 14x minus 120 equals to 0. I can take 2 common और I can write 2 common लीजिए और इसे इधर भी shift कर लीजिए. I will get x square minus 7x minus 60 equals to 0. Now I have to split it using middle term splitting, जिसकी आपको वीडियोस ऑलरेडी बना दी गई हैं, ऊपर लिंक में अवेलेबल है इन द प्लेलिस्ट. सो आई हैव टू थिंक फॉर 2 नंबर्स जिसको स्प्लिट करके 7 आए और मल्टीप्लाई करके 60 आए. सो कैन आई से 12 5 ज़ा 60, 12 and 5, 12 minus 5 7 and 12 5 ज़ा 60. So I can write x square minus, in place of 7 I can write 12 minus 5x equals to 0. So x square minus 12x plus 5x minus 60 equals to 0. So I have to take common now. X common, x minus 12 plus 5 common, x minus 12 equals to 0. X minus 12 again common. Either this 0 or this 0. This is the rule of factorization. So x minus 12 equals to 0 or x plus 5 equals to 0. This implies x is equals to 12
and x is equal to -5. This is not acceptable because length can never be negative. बेस हमारा x है, ये -5 कभी नहीं हो सकता है. So one possible answer is 12 only. That means बेस कितना होगा? 12 होगा. So I should write, so base is equals to 12 centimeter and altitude means height equals to how much? X minus 7 था. So x minus 7 means 12 minus 7, that is equal to 5 centimeter. So I hope you understood कि कैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है. सिंपली ड्रॉ राइट ट्राइंगल. जो भी गिवन है आपको, अगर बेस के ऊपर बता रखा है कि हाइट इज़ डिपेंडिंग ऑन बेस, तो बेस को x मानिए. इफ़ इन क्वेश्चन इट वॉज देयर कि बेस इज़ डिपेंडिंग ऑन हाइट, सो हाइट को आप x मानते. सिमिलर वे में आपने वैल्यूज पुट की एंड देन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपने x की वैल्यू निकाली. यू सेलेक्ट पॉजिटिव वैल्यू and reject negative one. Then after selecting positive you get value of x, that means base. फिर base से आपने -7 करने के बाद you find out height. So I hope you understood it कि कैसे हमने क्वेश्चन किया है. इसे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं. आप पाइथागोरस वेरीफाई कर लीजिए, आपको श्योर हो जाएगा यू हैव डन करेक्ट सोल्यूशन. सो x कितना आया है आपका? x इज़ हेयर 12 एंड हाइट इज़ 5. सो 12 एंड 5 स्क्वायर कीजिए. 12 12 ज़ा 144 प्लस 25 169 और 169 13 का स्क्वायर होता है. सो दैट मीन्स PGT इज़ वेरीफाइंग हेयर. सो दैट मीन्स आई हैव डन एग्जैक्ट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन. सो नाउ लेट्स डू question number 6 also in the same video. A cottage industry. Here in this video it is given that, let's read problem carefully. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. ठीक है, एक इंडस्ट्री है जो कुछ आर्टिकल प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्शन करती है एक दिन में. हमें नहीं मालूम वो कितने आर्टिकल बनाती है. ठीक है. इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे. एक दिन ये ऑब्जर्व किया गया दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कि जो बनता है वहाँ पर आर्टिकल, उसकी जो कॉस्ट है, तैयार होने की जो उसकी कीमत आती है, वो आती है 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. यानी एक दिन में कितने आर्टिकल बनते हैं हमें नहीं मालूम, हमने उसे x मान लिया है. ठीक है. और जो वो आर्टिकल बना, एक आर्टिकल जो बनता है वहाँ, उसकी कीमत कितनी है? उसकी कीमत 3 ज़्यादा है. 3 किससे ज़्यादा है? डबल ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. यानी जितने वहाँ प्रोड्यूस हुए हैं ना, उनका डबल कर दो और 3 से प्लस कर लो, तब एक की कॉस्ट आती है. आगे बता रखा है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें 90 रुपीज़ का हुआ है उस दिन. अब आप बताइए कितने आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं और उनकी क्या कॉस्ट रहती है. सबसे पहले हम लोग सपोज करेंगे कि आर्टिकल प्रोड्यूस होते कितने हैं. सो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना है? कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इक्वल्स टू, सो व्हाट वी आर गेटिंग एज कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल. हमें कितना पता चल रहा है? हमें ये बताया गया है कि किसी एक दिन देखा गया जो कॉस्ट थी आर्टिकल की वो 3 ज़्यादा थी, 3 मोर थी. किससे ज़्यादा? ट्वाइस द नंबर article produced on that day. Article produced, that means x. So I can say cost of one article equals to 3 plus 2x हो गया है. Also ये भी कहा गया है कि जब हमने टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट निकाली तो उस दिन 90 रुपीज़ आई. सो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इक्वल्स टू ₹90. अब आप बताइए टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? अगर हमने एक आर्टिकल बनाया तो उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट आ जाएगी. लेकिन अगर हमने x आर्टिकल बनाए हैं तो अगर हमने x आर्टिकल को 1 कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल आर्टिकल की कॉस्ट आ जाती है ना. सो यानी हमने नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स को कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारी टोटल कॉस्ट के बराबर ही तो रखा जाएगा. क्लियर?
यानी नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। जैसे हम निकालते हैं, हमने 90 रुपीज़ के पेन ख़रीदे तो कैसा हिसाब बनता है 90 रुपीज़ का, कितने पेन ख़रीदे मल्टीप्लाई एक पेन की वैल्यू कितनी है, उसकी कॉस्ट कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 30 पेन ख़रीदे 3 रुपीज़ ईच के, तो 30 मल्टीप्लाई 3 90 हो गया। सिंपल हिसाब है। ऐसे ही इसमें प्रोडक्शन का हिसाब है। सो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व कर लेते हैं। सो 3x प्लस 2x स्क्वेयर इक्वल्स टू 90। सो 2x square plus 3x minus 90 equals to 0. Now you have to split it using middle term splitting method. कैसे करना है, 92 ज़ा 180। अभी थोड़ा बिग नंबर है 180, तो फटाफट से इसे हमें फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करना चाहिए। वी हैव टू मेक ट्रिपलेट्स, डबलेट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। पेयर्स बनाते हैं। चलो 2 to the 4, 4 to the 12। अगर 12 इधर आ गया तो 15 नीचे आ गया। सो 12 and 15, 12 into 15 180 होता है, और 15 में से 12 जाएगा 3 बच रहा है। दैट मीन्स वी हैव सेलेक्टेड बेस्ट पेयर वंस। पहली बार में ही हमने सही सिलेक्शन किया है 15 and 12 का। सो 2x स्क्वेयर प्लस 15 minus 12 x minus 90 equals to 0। नाउ सी, एक काम करते हैं, अगर हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, सो 2 और 15 में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। वी कैन टेक कॉमन, वी कैन रीअरेंज दैम। इसे कंबाइन कर लेते हैं ताकि आसानी रहे। -12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब हम इजीली कॉमन ले लेते हैं। 2x कॉमन, सो x माइनस 6 प्लस 15 कॉमन, x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो नाउ x माइनस 6 एंड 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। आप वैसे भी कर सकते थे इन दोनों में से भी कॉमन लेकर, ये जो बिना रीअरेंज किए हमने कॉमन लिया है, हम वैसे भी कॉमन ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। सो वन टाइम कीप दिस इक्वल टू 0, देन दिस इक्वल टू 0। हेयर आई एम गेटिंग x इज इक्वल टू 6 और यहाँ से मिल रहा है -15/2, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि कॉस्ट कभी क्वांटिटी जो प्रोड्यूस की है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। जब क्वांटिटी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करेगी तो कुछ नंबर के हिसाब से करेगी ना, तो नंबर हम नेगेटिव कैसे ले लें कि माइनस में आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं। सो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इज 6, सो आई कैन राइट नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced equals to 6 and cost of one article equals to how much, कितनी थी, 3 plus 2x थी। so I can write 3 plus 2 multiply x was 6। सो 3 + 2 मत कर दीजिएगा बेटे, बोर्ड मास रूल के अगेंस्ट है, गलत हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 6 × 2 = 12 and 3 15 आंसर, एंड दैट इज़ इन रुपीज़। सो आई होप यू अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 5 and 6 आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और बाकी जो ऊपर के क्वेश्चन हैं 4th, 2nd and 3rd, दिस वन 4 पॉइंट कर रहे हैं हम अभी। 2 का क्वेश्चन नंबर 1 वीडियोज़ में एक्सप्लेन है। 2, 3, 4 आपको खुद से ट्राई करना है। 5, 6 आई हैव एक्सप्लेन हेयर। So now you have to complete 4.2. So complete your work and then we will study 4.3 in next video. Thank you.